Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the recording for Skills at the Rate 100 where for 100 days we are bringing for you 100 different speakers from all over the country. The speaker is Ashwini Prasad Roth, who is an artificial intelligence expert and also a tutor. We have learned about a detailed understanding of Python libraries and how to read the projects. Also, this video is sponsored by Soulful Success Academy by Komal Botra, who is a passionate life and mindset coach. She has trained over 500 plus professionals and individuals help achieve their full potential. More of them in the link in the description. So now, what are we waiting for? Let's go. Hello everyone, and first of all, thank you everyone for joining in this audit season on a Sunday, especially when either you have to go to work or you are resting कि एक दिन तो rest मिल जाए. So thank you everyone. There are 40 plus participants, which is really very encouraging for us. We are in today for the 39th session of Skills at the Rate 100, where we are trying to bring for you 100 different speakers from all over the country for 100 different topics. And today's topic is very, very special. We are using vibe coding a lot, but somewhere we lack the things because our basics are not clear, because just we are doing the copy paste. क्या error है, क्या नहीं है, कैसे ठीक करना है. We are dependent on chat gpt. So today our intention is to clear the little bit of basics, जिससे हम लोग का प्रोडक्टिविटी बढ़ पाएगा, हम लोग भी मतलब उसको यूज कर पाएंगे प्रॉपरली. सो वी हैव अ स्पीकर अश्विनी प्रसाद रॉथ जी, हु इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट and specially a programming instructor with over 2-3 years of teaching experience. He specializes in Python development and has guided numerous students in mastering programming concepts from fundamentals to advanced topics. So basic reason बात करने का यही था, हमने चूज किया जो एक्चुअली हु इज डूइंग इनटू प्रोग्रामिंग, ताकि वो हमको थोड़ा बहुत बेसिक समझा सके, तो हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लैरिटी रहे और हम लोग प्रोडक्टिव थोड़े बन पाए, राइट. Alongside teaching, he also works as a freelancing Python developer, building real world projects and AI based solutions. Okay. So Ashwini, thank you so much for accepting our invitation. That too also very short notice. I think 3 days ago we talked, and so much kind of you to accept it immediately. So over to you, Ashwini ji. Thank you so much for accepting. Just 1 second, I'll do one thing. For initially, I'll mute everyone so that we don't get the disturbance. When you are taking the doubts and everything, I'll unmute. Okay. So you can unmute yourself, Ashwini ji, and start. Thank you so much for accepting our invitation. It's my pleasure. Thank you. Okay, so अभी मैं शुरू करते हैं कि पाइथन लाइब्रेरी क्या होता है और पाइथन को कैसे आप क्ली वर्क कर सकते हैं कि जो हमारा pandas है, numpy है, मेटाप्लॉट है और scikit learn है, तो कैसे आप यूज करके अपना डेली वर्क कर सकते हैं. तो लाइब्रेरी हम क्यों यूज करेंगे? पाइथन या ना ऑटोमेशन के लिए मोस्टली फेमस है. तो पाइथन इज द इजीएस्ट लैंग्वेज एंड एवरीवन आप जैसे बात कर रहे हैं. वैसे हमारा भी कंप्यूटर में बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, जावा, पाइथन, सी प्लस, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं. इसी तरह से पाइथन भी एक इजी लैंग्वेज है, इंग्लिश के तरह ही आप कोड कर सकते हैं. तो इसलिए हम पाइथन को यूज करते हैं rather than और कोई लैंग्वेज को यूज करेंगे. पाइथन में बहुत सारे लैंग्वेज. एक सेकंड, सॉरी टू इंटरप्ट. आपका वॉइस थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा, कंटिन्यूस मैसेज आ रहा है कि वॉइस क्लियर नहीं है एक्चुअली. वॉइस क्लियर नहीं है क्या? मैं देखता हूँ. हाँ, शायद आप हेडफोन यूज कर रहे हैं इसीलिए क्या. मैं हाँ, इतना इधर है, इतना इधर है. हाँ, हाँ, हाँ. ओके देन ठीक है, मैं अभी से बात करता हूँ. सो तो अभी अभी हमारा क्या था कि जो हमारा लाइब्रेरी से, तो उनको कैसे हम यूज करेंगे और उनको यूज करके कैसे हमारा डेली वर्क को कमीशन करें या फिर उसको कैसे इजीली वर्क कर सकते हैं. इसलिए आज हमारा जो ये सेशन है, तो हमारा लाइब्रेरीज में बहुत सारे हमारे pandas है और numpy है, मेटाप्लॉट है, सस्केट लर्न है, और ये सब सारे होते हैं. तो अभी मैं एक बेसिक को बता दूं. आप मैं देख रहा था अभी बहुत सारे बच्चे क्या है ना कि बोल रहे थे
पाइथन के बारे में और लाइब्रेरीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं अभी एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि आप पाइथन कैसे रन होता है आपको पता है? कैसे रन होता है एक कोड कैसे रन होता है आपको पता है? तो यूज कर लेती हैं कि हाँ मैं चैट जीपीटी से कोड ले आऊंगा, उस पे डाल दूंगा तो वो रन हो जाएगा। लेकिन कैसे रन हो रहा है आपको पता है? रनिंग प्रोसेस कैसे पता है? यस, बोल रहे हैं आईडी। आईडीई होता है जो हमारा VS कोड है, उसके बाद उसको कंपाइलर में कहते हैं। तो मैं अभी थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, एक बेसिक बता देता हूँ कैसे होता है। तो हमारा क्या होता है ना, एक आईडी होता है। आईडी में हम क्या करते हैं ना, प्रॉपरली कोड लिखते हैं। इस टाइप का जो ना लिखा रहता हूँ आपको आईडी। ये जो VS कोड है, तो हमारा VS कोड है आईडी में। तो उसमें हम हमको कोड लिखते हैं, और उसमें एक एक्सटेंशन भी होता है पाइथन कंपाइलर। ये तीन चीजों के साथ चीजों को यूज करके हम ना क्या ना कोड लिखते हैं। तो वो कोड लिखते हैं तो कैसे रन होता है, तो लिए मैं अभी एक थोड़ा एक डायग्राम बता देता हूँ आपको। हम आईडी में जैसे ये कोड लिखते हैं, ओके, तो हमारा ये जो मैं अभी कोड दिखा रहा था, तो उसको वो जाता है क्या है ना कंपाइलर के पास जब हम रन करते हैं। कंपाइलर क्या करता है, उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। बाइनरी कोड, बाइनरी कोड क्या होता है ना, 0 1। 0 1 में क्यों करता है? तुम बोलोगे सर हम 0 1 में क्यों कन्वर्ट करेंगे? 0 1 में कन्वर्ट करने का यही मतलब है कि कंप्यूटर को समझ में आए। कंपाइलर कंप्यूटर को समझाने के लिए ये प्रोसेस करता है, 0 1 को कन्वर्ट करता है। तो सीपीयू क्या करेगा ना, कि 0 1 को समझेगा कि हाँ ये मेरा कोड है, कि ये करना पड़ेगा। उसके बाद वो करेगा, वो क्या करेगा ना, उसका खुद निकालेगा। जो आपको अगर दिया होगा कि हमारा एक एक्सेल सीट है, और जो एक्सेल सीट के बाद उसको क्या है ना कि हमारा जो भी करते हैं परचेस रजिस्टर, या फिर उसके बाद का जो भी आप काम करते हैं, तो उसको बोलना है कि ये हमारा प्रोसेस करके दे। तो मैं अगर बोलूं कि मैं एक एक्सेल शीट का डाटा को ऑटोमेट करूंगा, और उसके बाद जो भी उसका टास्क दिया होगा वो करके देगा। तो इसी को करने के लिए हम पाइथन में एक कोड लिखते हैं, उसको लाइब्रेरीज में कोड लिखते हैं जो वो कंप्लीट करके देता है। सो अभी बेसिक समझ आ गया कि कैसे पाइथन कोड रन होता है। और आपके पास पाइथन के कंपाइलर और VS कोड का कैसे चलाना है वो क्या पता है कि नहीं? थोड़ा चार्ट में बता दीजिएगा। अगर आपको आता है तो मैं वो पार्ट को स्किप करके फिर उसके बाद डायरेक्ट लाइब्रेरीज में जाऊंगा। एवरीवन? ओके देन ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट मैं अभी लाइब्रेरीज में जाता हूँ। तो क्या क्या लाइब्रेरीज होता है, तो हमारा 5 लाइब्रेरीज है पांडा। ठीक, पांडास हम क्यों इसे यूज करेंगे, तो हमारे एक्सेल सीट को अगर जो भी हमारा एक एक्सेल सीट है, मैं अभी दिखा देता हूँ एक एक्सेल सीट। तो देखना चाहो सक्सेस रजिस्टर, ये हमारा एक एक्सेल सीट है। ये हमारा एक एक्सेल सीट है, ठीक है। तो ये GST, इनवॉइस नंबर, अमाउंट सब कुछ दिया है इसको। मैं इसको क्या करना कि पांडास में डालूंगा कोड को। ये तुम्हारा बेसिक एक कोड है। तुम बोलोगे कि सर ये कोड जैसे हम लिखेंगे, हमको तो इतना कोड लिखना नहीं आता। बच्चों को आएगा कि हाँ हम कोड लिख सकते हैं, लेकिन उसको तुझको तो नहीं आएगा ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, चैट जीपीटी हो या फिर जेमिनी हो, बहुत सारे AI है, तो उनको बोल देंगे कि हमारा ये टास्क है, इसके लिए एक हमारा कोड दे दीजिए। तो मैं अगर आपको डाउट है कि ये कैसे करना है, कि मतलब कोड को कैसे प्रॉपरली लिख सकते हैं, लॉजिक राइटिंग कैसे करना है, तो इसके लिए भी मैं एक सेशन ले लूंगा कि लॉजिक राइटिंग कैसे कर सकते हैं। कि आप बोल रहे थे अभी, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि हमें तो कैसे करेंगे, कि XML से कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं प्रॉपरली, अगर आपका अपना कोई डाउट होगा तो मैं इसके लिए एक और एक सेशन रख दूंगा। उसमें पूरा कोडिंग के लॉजिक और डेटाबेस को कैसे मैनेज करेंगे, SQL को मैनेज कैसे मैनेज करेंगे, कि नॉन SQL को कैसे मैनेज करेंगे, तो उसके लिए आप मैं एक और
रेगुलाइजेशन उसमें मिल। तो इसमें से हम यहाँ पे देखेंगे कि इंपोर्ट पांडास या पीडी। तो ये पांडास को कैसे इंपोर्ट करेंगे, तो इसके लिए हम अपना टर्मिनल ओपन करते हैं। ये हमारा भी मैं जो बोल रहा था VS4 आईडी, ये एक आईडी है। ओके, तो उसको लिए आप एक वो लिखना पड़ेगा, कीप इंस्टॉल पांडास। जैसे क्या ना, प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं या फिर कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, इसी तरह से यहाँ पर आप अपना लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे इंस्टॉल पांडास। तो उसको जैसे ही आप करेंगे तो मेरा ऑलरेडी ही डाउनलोड है, तो वो नहीं दिखाएगा कि डाउनलोड के लिए, मेरा ऑलरेडी ही डाउनलोड में है, तो वो हो जाएगा ऑटोमेटिक। रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखा रहा है। जब करोगे तो वो एक डाउनलोड का प्रोसेस दिखाएगा कि हाँ ये इतना MBPS का है, वो डाउनलोड होगा। तो मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है, तो ये नहीं दिखेगा। तो अभी हम रन करते हैं। कोड को रन कैसे करते हैं करेंगे, तो एक्सटेंशन एक होता है कोड रनर के नाम से। ओके, कोड रनर, तो उसको आप एक्सटेंशन अगर यूज करेंगे तो आपको डायरेक्टली रन कर सकते हैं। कोई आपको जरूरत नहीं कि एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना, तो उसके लिए आप डायरेक्टली ही इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, pandas.pd, you can use the which is important for you। ये रन होगा, उसके बाद का जो भी काम काम होगा वो ऑटोमेटिकली करके दे देगा कि धन ये जो भी आपका GST इन है और GST के मतलब ये एक्सेल फाइल में जो भी है, देखो ये भी आ गया है हमारा। फाइल लोडेड सक्सेसफुली, GST इन, इनवॉइस नंबर एंड अमाउंट। ओके, उसके बाद इनवॉइस प्रेजेंट ओनली इन GST या टू बी। ओके, तो ये इसके बाद भी ये भी आ गया। इनवॉइस विथ मिसमैच अमाउंट, मिसमैच अमाउंट कुछ भी नहीं है। तो ये पांडा क्या करेगा ना, मतलब कोई मिसमैच है कि कुछ है, तो वो को दिखा देगा कि हाँ यहाँ पर कोई मिसमैच है, यहाँ पर कोई मिसमैच नहीं है। ओके, एनी डाउट्स भी जो मैं बताया उसके बारे में, कोई डाउट है? हेलो। हाउ टू लोड द फाइल्स एंड ऑल। ओके, तो मैं भी दिखा देता हूँ। अभी ये अपना इंपोर्ट कर दिया तो अपना पांडास को अपने स्क्रिप्ट में ले आए। तो इसके जैसे आप हमारा लोड कैसे करेंगे, क्या बोल रहे थे कि एक्सेल फाइल को कैसे अपने स्क्रिप्ट में लाएंगे, तो परचेस रजिस्टर पीडी, पांडास को एज पीडी के लिए इंपोर्ट किए। मतलब जो लाइब्रेरी है पीडी के लिए, इतना बड़ा पांडास कौन लिखेगा, तो इसलिए हम स्क्रिप्ट फॉर्म में पीडी रखिए। ओके, पीडी डॉट रीड एक्सेल। रीड एक्सेल एक हमारा लाइब्रेरी के अंदर ही होता है कि वो एक्सेल को रीड कर सकता है। तो हमारा जो परचेस रजिस्टर LS6, ये जो है हमारा जो एक्सेस रजिस्टर, हमारा जो सेल सीट है, वो हमारा इस फोल्डर में है। अब जैसे ही आप उसको डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा कि जो भी हमारा उसका एक्सेल में है, तो वो अपने आप ही लोड कर देगा। तो उसके बाद pd.read फाइल को अपना लोड करेगा। फिर उसके बाद अपना कोड लिखेंगे कि परचेस रजिस्टर वन GST इन वॉइस। ओके, तो उसके बाद ओनली इन बुक्स, प्रॉपरली कोड लिखेंगे। उसके बाद हमारा सिनेरियो एक है, इनवॉइस प्रेजेंट ओनली इन योर इंटरनल परचेस। इंटरनल परचेस बुक के लिए है, इनवॉइस प्रेजेंट ओनली GSTR टू बी टोटल डाटा, ये टोटल डाटा के लिए कोड लिख दिया। तो उसके बाद इनवॉइस विद द मिसमैच अमाउंट्स बिटवीन बुक्स एंड GSTR। तो उसके बाद GST, GST के बारे में आपको बताएंगे कि ये कोड कैसे हो रहा है। ओनली बुक्स एम्प्टी है कि उसके बाद कोई इनवॉइस है कि अमाउंट कितना है, वो सबको रीड करेगा। इनवॉइस प्रेजेंट ओनली इन GSTR। उसके बाद अगर कोई ई सेल्स के बारे में होगा, तो ई सेल्स के बारे में पता है? ई सेल्स क्या होता है? इफ और एल्स, अगर ये अमाउंट हमको मिल रहा है तो ठीक है, नहीं है तो नॉट। ओके, इफ एल्स के बारे में ही हम जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम मैंने ट्राई कैच मेथड भी यूज किया है। तो ट्राई कैच के बाद में मेथड में हमारा टोटली अगर ये मिल रहा है
उनको प्रॉपरली मिल जा रहा है तो उसके बाद ये रिटर्न कर देगा। अगर नहीं मिल रहा है तो वो एक्सपेक्शन फाइल नॉट फाउंड, प्लीज मेक श्योर फाइल इज प्रेजेंट और नॉट। ओके। ओके, और कोई डाउट है? Anyone has any doubts? I have one doubt. Before that, if anyone else having doubt, basically जितना मुझे समझ में आया, पहले हम लोग ने लाइब्रेरी इंपोर्ट किया, उसके बाद उसको फाइल रीड करने का कमांड दिया, हाँ, उसके बाद इफ एल्स लगा के वो यस, एक सेकंड मैं अनम्यूट कर देता हूँ। यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। एब्सोल्युटली। हाँ सर, ये आपने आउटर जॉइन और ये जो मर्जिंग किया है, so that is on GST number and invoice number, so I have doubt that why you have done that kind of thing. क्या होता है, क्या बोले? थोड़ा और ऊपर, हाँ हाँ, ये रिकंसाइलेशन डीएफ जो बनाया, पीडी डॉट मर्ज। हाँ। हाँ, सो ऑन में जीएसटी एंड इनवॉइस नंबर लिया है, हम्म। so generally we are using matching filter for it. मैचिंग होल्ड। सुनिए, मेरा काम, मैं यहाँ पर आया हूँ कि आपको पाइथन के बारे में किसी यूज करके कैसे करेंगे। मैं अब सीए हो तो आपको पता है कि हाँ कि हम लोग को जीएसटी चाहिए कि जो चाहिए, तो वो आप खुद ही बता सकते हैं। मैं एक कोडर हूँ, मैं इनके बारे आई में गॉट बता इट। सकता हूँ कि हाँ, हाँ, इन्होंने मैं जिस कोडिंग सैंपल के को बारे में बता सकता हूँ। लिया है, मैम इन्होंने जो सैंपल लिया है हाँ दिखाने के लिए, तो वो ऐसा नहीं कि वो एग्जैक्ट है, जस्ट सैंपल लिया कि आप इस हिसाब से कर सकते हैं, राइट? मैं कोडर हूँ, मैं हाँ डेवलपिंग करता हूँ, तो हाँ हाँ मतलब इतना क्या है ना कि शायद हाँ, मैं मतलब समझ गया, पता नहीं इट्स कि नॉट एन इशू, हाँ। वो मतलब okay अंडरस्टैंड। okay हाँ, just हाँ I have doubt that how it is generating results, so I have asked this. It's हाँ okay हाँ, sir. इट्स नॉट इट। Okay आई sir. हैव ओके ऑल्सो ओके, वन डाउट। एनीवन एल्स, एनीवन हैविंग हाँ। मोर डाउट्स, यू कैन राइट इन द चैट्स, आई विल अनम्यूट। ओके, तो आई हैव डाउट कि इसको लोकेशन कैसे पता चला, आपने जो पीडी डॉट रीड दे दिया, तो लोकेशन अगर हम लोग हम्म। का कहीं है, या हमको उसको इनपुट करना है कि हमको सिलेक्ट करने दे वो फाइल कहाँ पर है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि तो पॉपअप आ जाता है, हाउ टू मतलब सिलेक्ट, कि उसमें हम लोग फाइल सिलेक्ट करते हैं, वो दो चीज कैसे डिफरेंस होता है मतलब। मैं अभी बता रहा हूँ, तो इसको क्या है ना कि मैं अभी हमारा, मैं जो फोल्डर में कर रहा हूँ तो उसके अंदर ही मेरा जो एक्सेल फाइल है। अगर मैं इसको क्या करूंगा कि मैं कोई अलग कोई फाइल में होगा, तो मतलब कोई फोल्डर अलग फोल्डर में है, मतलब एक्सेल फाइल में कोई एक्सेल फाइल कोई अलग फोल्डर में है, तो उसका लोकेशन में यहाँ पर देना पड़ेगा। इसी फोल्डर के हमारी वो फोल्डर के बाहर हमारा ये फोल्डर है, उसका लोकेशन हमको यहाँ पर देना पड़ेगा। बाद वो क्या करेगा ना, उसको रीड करेगा, उसके बाद हमको दे देगा। अगर वो ऐसे भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्या करोगे कि जो फोल्डर में आप कोड कर रहे हो वही फोल्डर में आके वो फाइल को आके डाल देने। मैं अभी क्या है ना कि सब जो हमारा एक्सेल फाइल है उसको एक ही फोल्डर में डाल दिया हूँ, तो वो क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली वो रीड कर देगा कि हाँ ये फाइल है। नेम वो स्ट्रिंग में ले रहा है, तो स्ट्रिंग में क्या है ना कि हमारा जो भी फाइल का नेम है वो ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा। उसके बाद अपना काम जो भी हमने साइन किया है वो कर सकता है। ओके, गॉट इट। बस अगर या इनपुट जैसे लेना हो कि भाई नहीं, फिक्स नहीं है कौन सा फोल्डर में, तो इनपुट भी ले सकते हैं कि भाई आप, हाँ, वो शायद इनपुट फंक्शन से होता है, राइट? इनपुट इनपुट फंक्शन से ले, इनपुट फंक्शन से वो ले। डाउट्स एनीवन? एनीवन बेसिक, डाउट? एकदम बेसिक बताया है कि आप लाइब्रेरीज इंपोर्ट करो, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, पीडी शॉर्ट फॉर लिख दिया ताकि बार बार पांडाज नहीं लिखना पड़े। उसके बाद हमको जो जो फाइल्स का चाहिए इनपुट, या तो हम इनपुट फंक्शन से उसको वो डायनेमिक कर सकते हैं कि बार बार चूज करो, या फिर उसी फोल्डर में अगर होगा तो डायरेक्टली पीडी डॉट रीड से आ जाता है। एक्सेल फाइल है तो एक्सेल, सीएसवी है तो सीएसवी, पीडीएफ है तो पीडीएफ, उस टाइप से। उसके बाद थोड़ा बहुत या एसक्यूएल यूज किया है मर्ज करने के लिए, आउटर इन या लेफ्ट राइट। या उसके बाद प्रिंटिंग कर दिया रिपोर्ट्स का। तो एक बहुत सिंपल है, बट डेफिनेटली वी गॉट द आइडिया। कॉलम्स डेफिनेटली नॉट द परफेक्ट वन, लेकिन हम लोग को एक आइडिया मिला कि थोड़ा यूज कैसे करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, लाइब्रेरीज इंपोर्ट करके हमको इनपुट लेना है उस हिसाब से। ठीक है, एनी मोर डाउट्स एनीवन? विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट एग्जांपल, या जो भी आप, या ओके। या ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं नंबर से। तो अभी हमारा नंबर यूज करके आप क्या ना, अगर कोई
मतलब क्या है ना, ईएमआई कैलकुलेट करना है। नॉमपाई क्यों यूज करते हैं? तो नॉमपाई हाईएस्ट कैलकुलेशन के लिए। हमारा पाइथन में आरएस नहीं होता। ठीक, पाइथन में आरएस नहीं होता, तो उसमें क्या है ना, पाइथन में लिस्ट होता है। इसलिए 1998 में नॉमपाई को बना गया। नॉमपाई में आरएस बना गया। आरएस में क्या होता है कि हमारा ठीक टाइप का डाटा टाइप रहेगा। डाटा टाइप पूछोगे कि डाटा टाइप क्या होता है? डाटा टाइप में हमारा इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, स्ट्रिंग होता है। इस टाइप का डाटा टाइप हमारा होता है। इंटीजर में हमारा इंट मतलब क्या है ना, जो नंबर होता है वही होता है। उसके बाद फ्लोट में हमारा क्या होता है कि जो मतलब क्या है ना, पॉइंट, मतलब जैसे 1.2 टाइप का कोई अगर नंबर है तो उसके लिए हमारा फ्लोट यूज करते हैं। तो उसके बाद हमारा क्या ना, स्ट्रिंग के लिए हमारा जो जैसे होते हैं, हमारा जो कैरेक्टर्स होता है वो उसको हम स्ट्रिंग में रख लेते हैं। तो उस टाइप से लिस्ट में क्या होता है कि हमारा सब टाइप का डाटा रह जाता है, लेकिन आरएस में वो सब टाइप का डाटा नहीं रह सकता। सिंगल टाइप ऑफ डाटा रह सकता है, तो इसलिए कॉस्ट भी ज्यादा होता है। तो अभी हमारा क्या एक हम बोलोगे कि हम नंपाई क्यों करेंगे? नंपाई सीए की, आप जो सीए के लिए आप जो भी काम कर रहे हैं, कैलकुलेशन में ये ज्यादा ही अच्छा काम करता है, तो इसीलिए हम नंपाई को यूज करते हैं। तो ईएमआई कैलकुलेटर में बनाया हो कि ऐसे कैसे आप ईएमआई कैलकुलेशन कर सकते हो। मैं अगर प्रिंसिपल अमाउंट दू 10 लाख का लोन लिया है, तो उसके बाद आना एनुअल रेट हमारा दे दे अगर 9% का इंटरेस्ट है, और फिर 5 ईयर का टेन्योर है। ओके, तो उसको हम कैसे ईएमआई का वो जो कितना आएगा वो हम निकालेंगे। ये देखो, इसको कोड को रन कर देता हूँ। अभी आ गया आपका मंथली ईएमआई, आ गया 20,758। ओके, तो आपका इसे अगर आप कैलकुलेशन करने जाएंगे तो आपका टाइम लगेगा कि नहीं? तो अगर आप इसको यूज करेंगे क्या, नमपाई को, तो वो ज्यादा ही जल्दी ही आपको बता देगा कि हाँ, क्या हमारा ईएमआई का इतना आएगा। कि आपका जो भी आपका टास्क है कैलकुलेशन के लिए, नमपाई में ज्यादा ही जल्दी कर सकते हो। लोन ईएमआई, प्रिंसिपल लोन अमाउंट, और कितना भी आपको लेना है। तो इसको नॉम्स को कैसे यूज करेंगे? तो हमारा इसके लिए हम इंस्टॉल नॉम्साई को उसको करना पड़ेगा, तो उसके बाद ही आप उसको यूज कर सकते हैं। इनको नॉम्साई फाइनेंशियल, उसके बाद नॉम्साई भी है, नॉम्साई फाइनेंशियल भी है। ये मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है, तो इसलिए आपको रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखा रहा है। अभी अगर आप डाउनलोड नहीं किए हो तो आपका डाउनलोड का एक आएगा। तो ये आपका हो गया नमपाई के रिलेटेड। ये सब तो ऐसे ही मैं दिखा रहा हूँ कि ये शॉर्टकट है कि हाँ, ये यूज करके ये बता सकते हैं। लेकिन मेन आपका आएगा क्या, सब्सिक्वेंट लॉन। इसमें आप क्या ना, क्रेडिट कार्ड डिटेक्शन, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन और ट्रांजेक्शन फ्रॉड डिटेक्शन, इसके अंदर आप सब कुछ समझ सकते हो कि कैसे आपको फ्रॉड डिटेक्शन करना है। एक मशीन लर्निंग का ये सब पार्ट है। मशीन लर्निंग का एक सब पार्ट है। ये किट यूज करके आप जो अभी हमारा आप यूज कर रहे हो कि एक वेबसाइट में गए, मैं शुरू करता हूँ। आप वेबसाइट में गए, उसके बाद आप क्या करेंगे ना, आपको एक अपना क्रेडिट कार्ड देते हो। तो क्रेडिट कार्ड ठीक है, या फिर वो क्रेडिट कार्ड में कुछ फॉल्ट है कि कुछ नहीं, वो सारे गलत चीज भी दे सकते हैं ना। तो इसीलिए सीक्रेट लर्न बनाया गया है कि आपको क्रेडिट कार्ड फॉर डिटेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन डाटा में कुछ अगर गड़बड़ी होगी तो वो भी को बता सकता है। तो ये अभी आएंगे, क्योंकि मैं अपना नंपाई बता दिया। अभी ग्राफ कैसे ग्राफ कैसे बनाओगे, मेटाप्लॉइड वो बताऊंगा, उसके बाद फिर अंदर आएंगे। तो नंपाई के अंदर कोई डाउट है भी जो बच्चा है, कैसे इंपोर्ट करना है कि क्या, और कैसे यूज कर सकते हैं? अगर आपको चाहिए कि हाँ मेरे को बता दीजिए कि कैसे कोड को जनरेट करना है, तो वो इससे भी बता सकता हूँ लॉजिक। एनी डाउट? Anyone having doubt in NumPy? How to feed data in NumPy? ओके, तो अगर आप डाटा करना चाहते हैं, तो अभी जो है नॉमसाई के अंदर की कैसे आप डाटा पे फीड करेंगे, तो उसके लिए आपको हमारा क्वेरी लिखना पड़ता है कि जो एक देखो, मैं एक वेरिएबल के अंदर एक डाटा को रख दिया कि हाँ, हमारा ये इतना डाटा है एनुअल प्राइस के लिए। उसके बाद लॉजिक रख दिया कि हाँ, इस टाइप का डाटा रह सकता है। बाद हम क्या करेंगे ना, फॉरेन कन्वर्ट टू द एम्प्टी द ईएमआई कैलकुलेशन। ईएमआई कैलकुलेशन के लिए उसके लॉजिक लिखते हैं। ओके,
तो अभी मैं चलता हूँ क्या ना, आगे हमारा नॉर्मल तो अभी खत्म हो गया, अभी मेटाप्लॉटली अंदर यूज करते हैं। तो ये क्या होता है, तो मंथली रेवेन्यू विजुअलाइजेशन के लिए ये हम इसको यूज करते हैं। अब मंथली रेवेन्यू, तो ग्राफ, ये मोस्ट ऑफ ग्राफ के लिए ही यूज करते हैं। अभी एक बताता हूँ आपको। Back. ये आपका हो गया एक, और जो उसके अंदर आप टोटली यूज कर सकते हैं कि कैसे ग्राफ को टोटली यूज करते हैं। मैं इसको पांडा से यूज किया हूँ। ओके, तो इसके लिए मैंने क्या किया ना, एक मंथली रेवेन्यू का एक एक्सेल शीट बनाया था। मंथली रेवेन्यू मेरा है कि जिसका जो एक मंथली रेवेन्यू का एक्सेल शीट बनाया। फिर उसके बाद क्या किया, उसको कोड में डाला कि हाँ मेरा इतना मंथली रेवेन्यू है, देख लो आप। ये आ गया आपका एक मंथली रेवेन्यू का ग्राफ। ओके, जो डाटा, उसके बाद मैंने इसको कोड में डाला कि हाँ रेवेन्यू पीडी डॉट, जैसे ही आप पांडास में एक्सेल को डालते हो, वैसे ही आप इसमें ही डाल दोगे कि अपना जो भी एक्सेल सीट है उसको डाल देना। फिर उसके बाद यूज कर सकते हैं। रेवेन्यू कितना होता है क्या नहीं, वो उसको डाटा को रीड करेगा, फिर उसके बाद ग्राफ बना के दे देगा। तो आपका ग्राफ ऐसे ही करेगा। ये है इसका, आप ग्राफ बना सकते हो। अगर आपको कोई ग्राफ बनाना है तो आपको इसके क्या, ये पेन पेपर से नहीं बना सकते, तो इससे एक कोड से ही आप जल्दी ही अपना एक ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है? अभी ए- दूसरा एक स्टार्ट करता हूँ सबसे। एक मिनट, इसमें हाँ डाउट है। हाँ एनीबडी हैविंग एनी हाँ डाउट्स? जैसे इन्होंने वो हाँ। मैटप्लॉटलिब यूज करके ग्राफ बनाया, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो आउटपुट आप कर रहे हैं वो तो आप जिसमें कंसोल में ही कर रहे हैं। अगर हमको चाहिए कि कौन सी? एक्सेल फाइल आ जाए आउटपुट में, उसके अंदर ग्राफ आए, मतलब हम्म, मुझको आउटपुट में एक एक्सेल फाइल चाहिए ताकि मैं उसको मतलब परमानेंटली, क्योंकि क्या होगा कि आप सीएमडी में ही या कंसोल में ही कर रहे हैं तो वो तो चला जाएगा इमीडिएटली। मुझको एनालाइज करने के लिए या क्लाइंट्स को देने के लिए एक ऐसा कोड चाहिए जो आउटपुट दे एक एक्सेल फाइल में, जो मैं क्लाइंट को दे सकूं इस टाइप से, मतलब तो मेरा यूजेबल रहेगा कि हाँ क्लाइंट का सेल्स या परचेज का मैं कंपैरिजन बना लिया। तो अल्टीमेटली आई नीड द आउटपुट इन एन एक्सेल फाइल। तो वो थोड़ा सा अगर आप इसमें ऐड करके दिखा सके कि कैसे, हाउ टू आउटपुट द फाइल, कि आउटपुट एक एक्सेल फाइल निकल जाए। आई थिंक अदर्स मस्ट ऑल्सो हैव दिस डाउट। एक मिनट। हाँ हाँ। हाँ, तो आउटपुट मतलब करना जैसे अभी तो कंसोल में जो हो रहा है वो थोड़ा सा आप देखिए। बता दो सर। आप बता रहे हो कि इसे कैसे आप एक्सेल फाइल में दिखा सकते हो, तो ये बता जा रहे हो ना? मतलब मैनुअली हम लोग को करना पड़ रहा है ना सेव। डायरेक्टली वो तो एक्सेल हाँ आउटपुट हाँ। देता ही है ना, डायरेक्टली। कि भाई हम लोग हम्म। क्लिक करें, डायरेक्टली हाँ। एक्सेल फाइल आए, उसी को हम लोग खोलें, उसमें चार्ट बना हो। हम्म, हम्म, ठीक है। तो इसके अंदर हम सेव कर सकते हैं, तो सेव के ही वो कर सकते हैं। अगर वो उसको मैनुअली हो सकता है, तो मशीन के लिए उस पर हम क्या है ना, N8N यूज कर सकते हैं। तो मशीन के लिए अगर आपको उसको चाहिए कि हाँ हमारा ऑटोमेटिकली सेट हो गया, तो हम N8N के थ्रू से को सेव कर सकते हैं कि डायरेक्टली वो हो सकता है। इसके लिए वो थोड़ा टाइम लगेगा जी, तो थोड़ा टाइम का लगेगा। तो N8N की यूज करके के अंदर में एक क्या, मैं अपने खुद का ही एक वीडियो है कि N8N यूज करके कैसे ही आप अपना को कैसे स्टोर कर सकते हो ऑटोमेटिकली। तो मैं एक वीडियो आपको शेयर कर दूंगा, उसमें से ही आप देख सकते हो कि कैसे आपको तो ए, उसके बाद हमारा सर्टिफिकेट लर्न के लिए बताते हैं कि सर्टिफिकेट लर्न कैसे होता है क्या नहीं। तो सर्टिफिकेट लर्न के अंदर इसको फ्रॉड डिटेक्शन, अनोमली डिटेक्शन, ऑडिट और फाइनेंशियल टेस्टिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। ओके, लाइव फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन डाटा ट्रेन ऑटोमेटिकली, इसके लिए हम यूज करते हैं। तो अभी दिखाता हूँ आपको कैसे ही आप सर्टिफिकेट लर्न को यूज कर सकते हैं। इसको बंद कर-
मैंने ऑलरेडी कोड करके रख दिया, क्योंकि ना यहाँ पर अगर कोड करने बैठूंगा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक, तो मैं आपकी बेसिक के लिए यूज करने के लिए मैं अभी दिखा दे रहा हूँ। कोड रन करके दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं क्या करूंगा ना, जैसे कि रन को किसे इंस्टॉल करता है, इम्पोर्ट कैसे करना है, कैसे प्लग इन करना, क्या नहीं, उसके बारे में भी एक बता दूँ। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, भी हो जाएगा। ओके, अभी आ गया आपका हमारा जो एक्सेल सीट है, मैं अभी दिखा देता हूँ। डाटा एक्सेल। ओके, तो ये इसमें हमारा क्या ना अमाउंट है, टेस्टिंग दैट, तो लिए हमारा जो भी हमारा डाटा है वो दिया हुआ है। और वो क्या करेगा ना, पूरा टोटली रीड करेगा कि क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम है कि कुछ है, वो दिखा देता है। अमाउंट डिटेक्शन रिपोर्ट के अंदर हमारा ट्रांजेक्शन फ्लैग एज अ मॉडल अमाउंट प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग स्लैश इज अमाउंट की -1, वो दिखा देगा कि हमारा क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं। इसके अंदर में एक अपना लिए पेज बनाया कि कैसे कर की यूज करके आप कैसे फ्रॉड डिटेक्शन देख सकते हो कि हाँ, यहाँ पर हमारा ट्रांजेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर क्रेडिट कार्ड में कुछ इश्यू है। इसके लिए हम एक प्रॉपरली कोर्स बनाए। ये कोर्स के अंदर वो नहीं हो सकता कि सर्टिफिकेट लर्न को पूरा टोटली कंप्लीट कर देंगे, तो इसके लिए अपना एक पूरा प्रॉपरली डिटेक्शन के लिए एक प्रॉपरली एक कोर्स बनाया हुआ है। तो उसके अंदर ही मैं आपको प्रॉपरली बता सकता हूँ कि सर्टिफिकेट लर्न कैसे यूज कर सकते हैं, और कैसे आप ज्यादा परफॉर्म पास कर सकते हैं। ये ऑटोमेशन के लिए प्रॉपरली ही यूजफुल है, मशीन लर्निंग की तरह। मशीन लर्निंग के बारे में थोड़ा तो लर्न करना पड़ेगा कि सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग कैसा होता है, उसके बाद आप कोई यूज कर सकते हैं। ये आप जो चार्टर्ड अकाउंट के लिए काम करते हैं उसके लिए बहुत यूजफुल है, बहुत यूजफुल है। अगर आप यूज करेंगे तो आपको अपना अगर को चाहिए तो बता सकते हैं। पोस्ट कर लूंगा कि इसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, और एनी डाउट्स? थोड़ा कोड इसको एक्सप्लेन एक बार थोड़ा कर दीजिए, बेसिकली क्या इसमें हाँ है। हाँ, बता देता हूँ। हाँ, तो हाँ, मैं सॉरी, मैं बचना भूल गया कि इसको कैसे आप यूज कर सकते हैं। कर देता हूँ, टर्मिनल में जाना है। इसको सर्टिफिकेट लर्न को इंस्टॉल करने के लिए टिप इंस्टॉल सर्टिफिकेट लर्न, इसको इंस्टॉल जैसे करेंगे तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम मैं क्या करूंगा ना, वही अंडाज को यूज करके एक्सेल एक्सेल फाइल को यूज मैंने अपना डाउनलोड किया। फिर उसके बाद फिल्टर ट्रांजेक्शन अमाउंट बेस सिंक लास्ट, उसके बाद मॉडल को यूज करूंगा। आइसोलेशन फॉरेस्ट नाम के एक मॉडल होता है, उसके मैंने यूज किया है कि प्रॉपर डिटेक्शन के लिए ट्रांजेक्शन अमाउंट को यूज किया। फिर उसके बाद सबसेक्शन के ट्रांजेक्शन इस अमाउंट को -1 से तो इक्वल किया कि हाँ, ये -1 है, कि कोई माइनस में अगर कोई अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्रिंट फाइनल रिपोर्ट, ये एक प्रिंट फंक्शन है, तो अच्छे से दिखाने के लिए मैंने इसको दिया है सिंगल्स। और इफ यूज करके हमारा क्या ना, सस्पिशियस एमपी सस्पिशियस को यूज करके कुछ अगर प्रॉब्लम थे कि ट्रांजैक्शन कुछ सस्पिशियस है, उसको डिटेक्शन के लिए यूज किया। उसके बाद अगर ये सब कुछ ट्राई कैच मेथड के लिए होता है, ट्राई कैच मेथड यूज करके हम यूज करते हैं, तो इसलिए एरर कुछ होगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, डिटेक्शन हो जाएगा बहुत। हाँ। जैसे मॉडल जो है आइसोलेशन फॉरेस्ट, ये हाँ मतलब उसका लाइब्रेरी का पार्ट है। हाँ, ये लाइब्रेरी का पार्ट है। ये लाइब्रेरी के अंदर आप जैसे यूज करोगे तो उसके अंदर ही आपको ये आइसोलेशन फॉरेस्ट का मॉडल ये आपका ऑलरेडी ही होगा। तो उसको यूज करके आप रैंडम स्टेट यूज करके, ये क्या है ना, उसका कोड है कि हाँ, कॉम्बिनेशन फ्लोटिंग फ्लोटिंग वैल्यू लिया है कि कौन सा लिया है, तो वो ये कभी कर देगा कि ये आइसोलेशन फॉरेस्ट एक मॉडल है, उसके अंदर हम यूज कर सकते और ये जो हैं। कंटामिनेशन और रैंडम स्टेट है, ये सब कहाँ से मिलता है, मतलब हम लोग को कैसे आइडिया होगा। ये ये आपका आइसोलेशन फॉरेस्ट के अंदर ही है।
जैसे ही आपको ये आइसोलेशन फॉरेस्ट लिखोगे, बाद आपको ये क्या ना पैरामीटर की तरह, ये पैरामीटर के अंदर ही आपको दिया है। पर ये जो आपका फ्लोटिंग वैल्यू है कि आपका जो भी आप जो भी दोगे इसके अंदर ही वो ऑटोमेटिकली सजेस्ट करेगा कि आप यूज करोगे कि या नहीं, आप ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर लेगा ठीक है। मॉडल के अंदर। एनी मोर डाउट्स रिगार्डिंग दिस? मेनली ये मतलब वो मशीन लर्निंग का बहुत बेसिक लाइब्रेरी है। हाँ, ये बेसिक मशीन लर्निंग का एक बेसिक लाइब्रेरी है। तो पूरा प्रॉपरली डिक्शन को पता करने के लिए चाहिए, तो उसके लिए आपको पूरा टोटली स्किल लर्न को पढ़ना पड़ेगा। सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग को उसको बारे में पता करना पड़ेगा। उसके बाद आप डिटेक्शन को आपको यूज कर सकते हैं। क्योंकि ना आपका कोई क्लाइंट होगा, मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका कोई क्लाइंट होगा कि वो ट्रांजेक्शन गड़बड़ किया है। आप क्या ना पूरा डाटा को आपको खुद ही देखना पड़ता है। अगर आप कोई इस तरह से कोई टूल्स की यूज करेंगे कि जैसे सफिकेट लर्निंग हो, तो उसको अगर प्रॉपरली यूज कर लेंगे तो उसके अंदर कुछ भी फॉल्ट है कि उसके अंदर कुछ भी गलती होगा, तो वो आप जो कुछ कर लोगे कुछ ही मिनट में। उसके बाद आपको पता है कि हाँ, यहाँ पर आपकी कोई ट्रांजेक्शन में ये गड़बड़ी है, तो इसमें प्रॉब्लम है। उसके बाद आप डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है? तो ये आपका अंदर पूरा टोटली ये क्या कैसे यूज कर सकते हो क्या नहीं। सर्कुलेशन आप एक ही, ये नहीं कि आप पांडास और नंपाई को एक ही बारे में एक ही तरह ही यूज कर सकते हो। आप आपको मर्ज करके भी यूज कर सकते हो कि ऐसे कुछ कोड दे दिया है। ओके, रियल यूज सी ए केस। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताया। तो अगर आपका कोई डाउट है या फिर कुछ मशीन लर्निंग या फिर उसके बारे में कुछ पता करना है, मेरे से लिंक्डइन की तरह लिंक्डइन से आप बात कर सकते हो कि हाँ ये सर मेरे को ये डाउट है कि मशीन लर्निंग के बारे में कुछ करना है, और पांडास और नॉमपाई के बारे में इसको लाइब्रेरीज पे कैसे यूज करते हैं, कैसे यूज करना है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है? और एनी डाउट्स? इसके अलावा कोई और लाइब्रेरी, मतलब थोड़ा बहुत लाइब्रेरीज का किस चीज के लिए क्या यूज होता है? जैसे ये सब तो आपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट से बता दिया कि पंडाज नाइम नमपाई ये सब फिनेंस। इसके हाँ हाँ। अलावा भी बहुत सारी लाइब्रेरीज होती होंगी, मतलब मुझे भी पूरा नहीं मालूम, लेकिन अलग अलग वर्क के लिए हाँ, अलग अलग होती है। तो उसका कोई लिस्ट, या हम लोग को एक बार थोड़ा सा 10 मिनट आप वो बता सके कि किस लाइब्रेरी को क्या मतलब इम्पोर्टेंस है, कहाँ चाहिए? और इसके अलावा किसी को एनी मोर डाउट्स? दिस वाज बेसिक एक्सप्लेनेशन कि हम लोग एक कोड जब लिखते हैं, जैसे ईएमआई कैलकुलेटर बनाया, तो नंपाई करके हमको उसको इनपुट दे के उसके बाद उस चीज के लिए वो यूज होता है, राइट? तो बिफोर माई डाउट, एनीवन एल्स हैविंग एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? एनी? आई कैन अनम्यूट इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट। आस्क ऑल टू अनम्यूट, सो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ इन फैक्ट इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स। कि थोड़ा सा बेसिक एक्सप्लेनेशन था, बीच में थोड़ा बहुत मतलब ऑब्वियसली सारा चीज कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन एक आइडिया हम लोग को मिला कि पांडास से क्या काम होता है रीड वगैरह करने के लिए। वही लिस्ट ऑफ लाइब्रेरीज जो मैंने बोला कि लिस्ट बोल के नहीं, जो मेन मेन है, ऑब्वियसली सारा तो काम नहीं आएगा, बट जो मेन मेन हम लोग को यूज होता है उसका कोई लिस्ट या कोई कहीं से हम लोग देख सकते हैं। या आप अगर मैं बता ग्रुप में एक शेयर कर दूंगा कि हमारा मैंने एक लिस्ट बना दिया है, तो आपसे लिस्ट को भी अभी मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन अभी क्या ना, मैं अभी बता दें कि मेन मेन जो भी आपका यूज होता है कि टोटली आपको यूज करना है, तो ये मेनली आपको पांडास नाम है, और मैथ मैथ आप के लिए भी यूज कर सकते हो, और सबसे कुछ नाम, ये चारों ही आपके लिए मेनली यूज होते हैं। जो भी फ्रॉड डिटेक्शन में अगर आपको कोई एक्टिविटी करना होता है, इसके अंदर यही तीन चार ही आपको यूज होता है, ये मेनली यही यूज होता है। सब्सिक्वेंट लर्न के लिए मैं बोलूंगा कि सब्सिक्वेंट लर्न के लिए एक पूरा प्रॉपरली एक डॉक्यूमेंटेशन में आपको शेयर कर दूंगा। उसके अंदर सब्सिक्वेंट लर्न के लिए आप कैसे कर सकते हो, क्या क्या होता है, और फ्रॉड डिटेक्शन के लिए तो एक्चुअली उसके लिए मैं अपना एक डॉक्यूमेंटेशन बनाया हूँ, तो उसको भी आप शेयर कर दूंगा कि जैसे ही आप सब्सिक्वेंट लर्न को कर सकते हो। और अगर कुछ ज्यादा कुछ चाहिए कि हाँ मुझको और भी कुछ चाहिए, तो उसके लिए भी मैं अपना डॉक्यूमेंटेशन शेयर कर दूंगा कि हाँ ये सब आपका लाइब्रेरीज है, इसके अंदर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो अभी मैं इतना ही डाउट था या कुछ है और कोई अंदाजा डाउट? नमपाई के लिए? ऑनलाइन भी तो रिसोर्सेज है जहां हम लोग एक बार देख सकते हैं।
या ऑल्सो। तो वो पांडास और नॉम्स आएगा कि खुद का लाइब्रेरी जो होता है इसका डॉक्यूमेंटेशन खुद का है। वो आप एक बार ताकि तो वो कहाँ मिलता है हाँ कुछ? दिखा दो। हाँ हाँ दिखा देता हूँ। हाँ वैभव जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एवरीवन। अभी कोई वे नहीं है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं, सर को पहले खत्म कर दीजिए, देने दीजिए, बाद में मैं हाँ डाउट। ठीक है ठीक है। पांडास के अंदर जाओगे ये आपको दिखा देगा कि हाँ ये लाइब्रेरी से ओके। दिया है। मतलब उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप पांडास डॉक्स यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन के अंदर दिखा देगा कि आपको क्या क्या है क्या नहीं। सबके अंदर सबसे डॉक्यूमेंटेशन है। जाओगे तो उसके अंदर आप प्रॉपरली जान सकते हो कि हाँ एलाबरेट कर सकते हो क्या क्या है। अगर आपका कोई डाउट है कि हाँ मेरे को ये पर्टिकुलर बारे में पता करना है तो बता देना कि मैं प्रॉपरली आपको एक गाइडेंस को दे दूंगा। जैसे ये तो पांडा स्पेसिफिक है, कोई लिस्ट ऑफ लाइब्रेरीज अगर देखना हो कि और क्या क्या है, जैसे हम लोग ओके का ओके ठीक ये ओडीबीसी कनेक्ट करने में, जैसे मेरा काम तो ओडीबीसी का करता है, तो पीवाई ओडीबीसी है बोल ओके। के एक मुझे एक लाइब्रेरी मिला जो आपका टेली से हाँ कनेक्ट होता है। उस टाइप से लिस्ट ऑफ लाइब्रेरीज अगर किस चीज के लिए क्या हाँ है। ठीक है ओके ओके ठीक है बता शायद पाइथन लाइब्रेरीज मारने से आ जाएगा ना। मैं बता रहा हूँ अभी क्या मेरा डॉक्यूमेंटेशन ओपन करता हूँ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही access करें। विंडोज नॉर्मल हो गया। ओपन टी वाइक्स जो अभी मैं यूज कर रहा था वीएक्स में। ओके उसके बाद टी वाइक्स के बाद सीएसपी क्वांटली और मनी फॉरेक्स पाइथन हाइपरलिंक मैक्सफ्लोर और रिपोर्टिंग विजुअलाइजेशन का मैं बता दिया। पीडीएफ के लिए अगर पीडीएफ डॉक्यूमेंटेशन हैंडलिंग के लिए आप यूज कर सकते हो पीवाई पीडीएफ यूज हाँ, कर सकते कुछ हो। अगर और लिस्ट हम लोग को दिखा देते तो इजी रहता है, ऐसे नाम तो याद नहीं रहेंगे ना। हाँ हाँ ये कर सकता हूँ। शायद वही मारने से आ जाएगा ना, पाइथन लिस्ट ऑफ लाइब्रेरीज, तो उसमें। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा अभी आपको पीडीएफ शेयर कर देता हूँ ग्रुप अच्छा, चैट चैट्स में आप तो। पीडीएफ शेयर कर रहे हैं? हाँ हाँ मैं पीडीएफ शेयर कर ओके ओके। रहा हूँ। चैट्स में शेयर हाँ कर रहे पेज हैं में शेयर पीडीएफ? कर हाँ। एक मिनट, आया नहीं है अभी तक। और अगर नेट स्लो है थोड़ा मेरा तो इसलिए तो मैं पीडीएफ शेयर कर रहा नहीं तो एक काम करेंगे, आप मुझे बाद में भी शेयर, अगर आपने कर दिया तो ठीक है, हूँ। हाँ मुझे कर दीजिए। मैं ग्रुप में एक बार दे दूंगा जो बेसिक बेसिक लाइब्रेरीज है, उसका एक लिस्ट हाँ होने से कि वही किस चीज के लिए क्या है, जैसे पीडीएफ प्लम्बर बताया, पाई पीडीएफ बताया, इस तरीके से है बहुत सारी। थोड़ा सा उसका अंडरस्टैंडिंग हम लोग को होने से थोड़ा वो हो जाता। चलिए, बेसिक जो हमारा फाइनेंस का है वो तो पंडास नमपाई और मैटप्लॉटलिब, ये दो तीन ही है। हाँ ठीक वो है। तो वैभव जी, आपको कुछ डाउट था? यस।
वैभव जी, अनम्यूट आप कर सकते हैं सर, मेरे हिसाब से तो मैंने अनम्यूट का किया हुआ है, आप देखिए ना, आप ट्राई कीजिए। यस, पहले अनम्यूट नहीं हो रहा था। सो सर, जनरली हम फाइनेंस डोमेन से बिलोंग करते हैं, तो हमें ये सब टेक्निकल चीजें सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट अभी एआई के आने से ये थोड़ा इजी हो गया है। अभी भी मैं और ये सर अग्रवाल सर भी अभी प्लेग्राउंड हमारे लिए थोड़ा बहुत बनता जा रहा है पाइथन के साथ प्ले करने के लिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर एआई से कुछ आंसर सीख करते हैं यूजिंग दी पाइथन कोड, सॉल्यूशन सीख करते हैं, तो वहां पर हमें कुछ नहीं पता होता कि ये लाइब्रेरी इसके लिए बेस्ड है। लाइक आपने जो लाइब्रेरीज बताई वो हमें नहीं पता था कि ये लाइब्रेरीज उनके लिए बेस्ड काम कर सकती है। तो ऐसे प्रॉम्प्टिंग कैसे करना है और किस वे से करना है जब एआई से हम आंसर सीख करते हैं? तो आप हम कुछ ऐसे आइडियाज बता सकते हैं जहां पर हम ये पूछ सकते हैं, जैसे लेट सपोज मुझे कुछ जीएसटी एक्सेल फाइल्स है, उनका कुछ मर्जिंग करना है और मर्जिंग करके उसका कुछ रिपोर्टिंग भी कुछ प्लान आउट करना है कि जहां पर वो आपने जैसा ग्राफ वाला बताया। बट मुझे ये नहीं पता है कि कौन सा लाइब्रेरी परफेक्टली उनके लिए काम कर रहा है। तो वो कैसे प्रॉम्प्टिंग करना है वो कुछ बता सकते हैं तो उसके अराउंड। लाइक ये आप समझ सके और भी आपको करके दे सकते हैं। सो मैं भी एक चैट जीपीटी की तरह, चैट जीपीटी अभी यूज करो तो मोस्टली यूज होता है, बेस्ट होता है आपके लिए। रुको, ये दिखा देता हूँ। ओके, तो ये आपका चैट जीपीटी हो गया। तो चैट जीपीटी ओपन हो गया, तो उसके बाद आपको जो भी एक्सेल शीट करना है, ओके। तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हो कि क्या नहीं, मैं भी दिखा देता हूँ आपको। अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको बता देना है कि आपका एक्सेल शीट क्या होगा। क्या बोल रहे थे आप? एक्सेल शीट को मर्ज करना है, वैभव। वैभव, वैभव जी, वैभव जी। अल्टीमेटली मतलब क्या होता है कि वो ये है कि हम लोग को जो लाइब्रेरीज, सपोज चैट जीपीटी में उनका जो क्वेश्चन मुझे यस समझ में सर। आया, मैं बताता हूँ। एक्सेल, सॉरी, लाइब्रेरीज जो चैट जीपीटी सजेस्ट कर देता है, हम लोग को वो पता नहीं चलता वो बेस्ट है या कोई और लाइब्रेरी से इजीली हो जाएगा। स्पेशली मुझे भी ये कंसर्न हुआ जब मैं पीडीएफ को मान लीजिए मैनिपुलेट करने का ट्राई कर रहा था। तो उसके लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज है, पीडीएफ पाई, पीडीएफ पीडीएफ प्लम्बर है, और भी होंगी। तो वो क्या लाइक होता सर, है। मैं एक केस आपको प्रेजेंट करता हूँ। जैसे मैंने बताया ना, ये एक्सेल शीट वाला, तो मैं उसमें ये भी चाहता हूँ कि जैसे मैं दो एक्सेल शीट को मर्ज करना चाहता हूँ फर्स्ट। तो वो उसमें मैं यूआई देना चाहता हूँ, मतलब डायरेक्ट यूजर को यूआई मिलेगी जहां पर दो एक्सेल शीट या तीन एक्सेल शीट जो भी है वो मर्ज करना चाहता है, वहां पर उसको यूआई मिलेगा। तो यूआई के केस में मैं कौन सा यूआई यूज करना है, कौन सा लाइब्रेरी अच्छा है, तो वो मुझे यहाँ से पहले से नहीं पता होता। लाइक देन ग्राफ करना है, मर्ज करना है, मर्ज में भी एक्सेल में फाइनल आउटपुट ये फॉर्म में चाहिए, तो वो वहां पर कौन सा अच्छा लाइब्रेरी होगा, लाइक दैट। तो आपको जो आपका डाउट है मैं तो समझेगा, समझ गया। ये चैट जीपीटी में सॉल्व नहीं कर सकता, उसके लिए आप यूज करो जेन स्पार्क यूज करो, बेस्ट होगा आपको। और पहली बात, जेन स्पार्क, जेन स्पार्क एआई के बारे में पता है आपको? ये आपका एक सुपर एजेंट है, उसके अंदर आप यूज करोगे कि आपको बता देंगे कि हाँ हमारा जो भी है, मतलब जो भी काम है कि मेरा एक्सेल शीट को मर्ज करना है, कि मेरे को ऊपर एक प्रॉपर विजुअलाइजेशन चाहिए कि कुछ भी है, ये आपके लिए प्रॉपरली एक एक्सेल शीट बना देगा। उसके बाद उसको मर्ज कर देगा। ये आपको चाहिए है ना, जस्ट नॉर्मल फॉर्म लिखना है, क्योंकि ना ये एक एजेंट है। एजेंट क्या करता है कि का जो नॉर्मल प्रॉम्प्ट है कि ह्यूमन लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है कि प्रॉम्प्टिंग में। ठीक है, तो आप ये यूज कर सकते हो, जेंसमार्क ये यूज कर सकते हो। ये एक सुपर एजेंट है, उसके अंदर आप डालोगे तो ये ऑटोमेटिकली को कन्वर्ट करके आपको दे देगा कि हाँ ये आपको प्रॉब्लम है। तो अगर मैं एक दे दूंगा कि मेरा पीपीटी बनाना है कि कुछ भी है, तो कि मेरा एक एक्सेल शीट को मर्ज करना है, ये एक्सेल शीट को मर्ज करके दे देगा। जेनस्टार पे आप यूज कर सकते हो। ओके,
जेम्स पार्क के अंदर ही आप यूज कर सकते हो। ये मैं अगर आपको बताऊंगा कि हाँ ये आपका कोई अगर कोई अलग कोई टास्क होगा तो उसके बाद आप कंफ्यूज हो जाए कि हाँ साथ ने तो कर लिया लेकिन मैं जब कर रहा हूँ वो नहीं हो रहा है। जेम्स पार्क यूज करो। चैट जीपीटी तो अभी बहुत हो गया है, तो अगर जेम्स पार्क हो गया कि मानुस एआई हो गया तो ये एजेंट्स होते हैं, तो उनको अगर आपको दे दोगे कि ये टास्क करने के लिए वो इजी हो जाएगा। ठीक है। सर्टन तो वही है, जीपीटी वगैरह कुछ सर्टन हो जो जहाँ पर स्पेसिफिक पाइथन के रिलेटेड ही आंसर बहुत अच्छे तरीके से मिलता हो, ऐसा आपके ध्यान में होगा? ये जेम्स पार्क के अंदर में आपका हो जाएगा, जो भी आपका कोई डाउट, जो भी आपने डाउट बोला तो ये जेम्स पार्क के अंदर ही हो जाएगा। ठीक है ना, अभी के जनरेशन में अभी यहाँ के ह्यूमन को कुछ करना ही नहीं पड़ता कि आपको जेंट्स जो भी एजेंट्स है तो उनको अगर आप टास्क असाइन कर दो ये हो सकता है। मैं जो NI10 के बारे में बोला, मैं NI10 के बारे में बोल रहा था कि हाँ NI10 की यूज करके बना सकते। NI10 में आप प्रॉपरली टास्क असाइन करके बता सकते हो। अगर खुद का भी बनाना है तो सर्टिफिकेट लर्न के अंदर आप बना सकते हो। थोड़ा लग रहा है तो बताने में थोड़ा बीच बीच में अटक जाता हूँ, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन सर्टिफिकेट लर्न यूज करके आप यूज कर सकते हो मोस्टली। आपका काम सब कर देगा कमीशन के लिए काम। और अगर कोई आपको चीज करना है कि क्या करना है तो जेंस पार्ट करना यूज कर सकते हैं। ओके। ओके अभी एंड करें या कोई कुछ? ओके। Okay, anyone, any more doubts? I have one doubt, sir. Yes, yes. हाँ सर एक्चुअली चैट जीपीटी में उतनी अच्छी कोडिंग नहीं होती है पाइथन की, तो ऐसा कौन सा एआई टूल है जो सिर्फ कोडिंग के लिए यूज होता है जिसमें एक्यूरेट कोडिंग मिल पाए? बिकॉज चैट जीपीटी से पाइथन कोडिंग करवाना बहुत डिफिकल्ट था, मैंने अभी ट्राई किया। हाँ हाँ हाँ। उसको जितनी बार भी जीपीटी समझाते से हैं। नहीं, आप यूज कर सकते हैं क्लाउड यूआई, CLAUD, क्लाउड यूआई, क्लाउड एआई। स्पेसिफिकली यूज क्या है कि हमारा जो कोडिंग के लिए वो क्लाउड एआई 4.0 एफिशिएंट है। आप क्या ना चार जीपीटी टाइपिंग दे रहे हैं तो क्या होता है कि वो कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। लेकिन क्लाउड 4.0 में वो आपको कोई सब्सक्रिप्शन देना नहीं पड़ता, तो थोड़ा ही लिमिटेशन है, यूज कर सकते हो। ठीक है। अगर वैसे VS कोड की तरह आप ये ट्रे भी यूज कर सकते हो। सर ये आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही शायद तक। हेलो हेलो। हाँ जी सर। हेलो, अभी सुनाई दे रहा हूँ? आई एम ऑडिबल? Yes. या ओके। देन मैं बोल रहा था कि सॉरी, थोड़ा ये इसमें प्रॉब्लम हो गया है। तो अभी मैं क्या बोल रहा था कि जो आप बोल रहे हैं कि चैट जीपीटी प्रॉपरली क्या ना टास्क नहीं कर रहा है, कि आपका जो कोडिंग के लिए वो प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, तो आप यूज कर सकते हो क्लाउड एआई यूज कर सकते हो। और एक है ट्रे एआई, इसके अंदर आप यूज कर सकते हो कि आपको प्रॉम्प्ट देना है सिर्फ, वो खुद ही कोड करके आपको दे देगा। ओके, इसको आप इंस्टॉल कर लोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर खाली जस्ट प्रॉम्प्ट देना है कि हाँ मेरे को ये टास्क करना है। आपका एक्सेल शीट है यहाँ पर आप देख। मेरा 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 मेरे को लग रहा है आपकी कोई आवाज नहीं आ रही, इससे डिस्कनेक्ट हो गया था। थोड़ा सा बता सके, लास्ट मेरे को क्लॉड एआई सुनाई दिया है। हाँ, मैं बोल रहा था कि आपको जो चैट जीपीटी में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए आप क्लॉड एआई यूज कर सकते हो। क्लॉड एआई आपका क्या है ना कि कोडिंग के लिए ही स्पेसिफिक बनाया है, वो सिर्फ कोड के लिए ही बनाया गया है। तो आप जो भी पाइथन कोड बनाना है तो क्लाउड एआई के थ्रू से बना सकते हो। ओके। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि मतलब क्या ना कोड को डाल के अंदर क्या ना VS कोड में डालने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप ट्रे यूआई यूज कर सकते हो। ट्रे एआई। कैन ओके। कैन TRAE, ट्रे एआई। ओके। तो इसके अंदर क्या है ना, आपके जो चैट सेक्शन है उसके अंदर आपको जस्ट कोड देना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब कुछ समय के बाद ये आपको मांगेगा कि इतना पेड करने के लिए, लेकिन आप जितना टास्क है वो बना सकते हो। इसके अंदर एक हैक बता देता हूँ। आपको क्या है ना मल्टीपल ईमेल आईडी रखना है। एक ईमेल आईडी से काम करोगे, फिर उसके बाद जब लिमिट एक्सटेंड हो जाएगा फिर उसके बाद और एक ईमेल आईडी डाल देना, उसके बाद चल सकता है। ओके। ये अभी यूजफुल है और ये नंबर वन मतलब आईडी है जो कोड ऑटोमेटिकली कर सकता है।
ओके, मैं अभी अगर कुछ भी, ये तो एक ऐप के लिए कोड बनाया गया है, मैं इसके अंदर पाइथन के लिए कुछ भी कोड बना सकता हूँ। ओपन फोल्डर के लिए जाऊंगा, फिर उसके बाद पाइथन का कोड जो भी है उसके अंदर रख दूंगा, मैं बता दूंगा कि ये कोड करना है, वो करके दे देगा मेरे। मतलब लिखना भी, कॉपी पेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा आपको, वो उसके अंदर आप जाके बस सिर्फ बताना है कि हाँ मेरे को ये टास्क करना है, उसके बाद वो करके दे देगा। ओके, देख देख सकते हो, ये इसका एक आपका एक इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपका ये आपका कोड, साइड पे आपका पाइथन का कोड है, उसके बाद एक्सेल सीट है। मैं अगर बोल दूंगा कि एक जो भी आपका कोई बोलेगा, मेरा एक सॉरी, मेरा एक क्राउन का कनेक्शन सर्वर आ गया है, तो इसीलिए आपका नहीं हो सकता। लेकिन आप अगर ट्राई करोगे तो ये हो सकता है कि आप प्रॉपरली यूज कर सकते हो। मेरा ट्रे आई के कोड में थोड़ा प्रॉब्लम है, ये नहीं हो रहा है, लेकिन आप यूज कर सकते हो ट्रे आई। जो भी आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर लेगा, कि मतलब कोड में प्रॉपरली आपको कोड करना ही नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली कोड कर देगा। हाँ दिनेश, बोलिए। दिनेश जी, any more doubts? You can unmute yourself. अरे भाई, 2-3 बार क्या? मैंने तो अनम्यूट कर दिया यार, 1 मिनट रुको। आई डोंट नो व्हाई इट इज क्रिएटिंग इश्यूज। मैंने तो अनम्यूट ऑल कर दिया है। प्लीज ट्राई टू सी। या सर, आई गॉट यू। हाँ हाँ, ओके, सॉरी, बोलिए। जैसे उन्होंने वैभव जी ने बताया, सेम क्वेश्चन मेरा भी था कि जैसे कि एग्जांपल एक जीएसटी 3D पोर्टल से डाउनलोड होता है, और हाँ, उसमें से मेरे को पर्टिकुलर कुछ फिगर्स है जो मिल नहीं है, जिसमें कुछ डेटा है, जैसे हम सेल्स देखते हैं तो सेल्स के कुछ डेटा होते हैं वो आपका एक्सट्रैक्ट आवाज नहीं ठीक हो से पा नहीं आ रहा है। आपका आवाज ठीक से नहीं है, थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। रहा। सर मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे हाँ, अब आवाज, हेलो, हेलो। आवाज आ रहा है सर आपको? थोड़ा सा इको हो रहा है। इको हो रहा है आपका। अब धीरे भी हो गया बहुत। पहले आ रहा था, थोड़ा बेटर ही था पहले तो। डाउनलोड करते हैं। नहीं नहीं, मुझे तो नहीं आ रहा है अभी भी। अब तो और ही कम हो गया। दिनेश जी। हेलो हाँ, अब आ रहा है। सर, मैं ये कह रहा हूँ जैसे हाँ बोलिए। जीएसटी के पोर्टल से हम 3B और R1 डाउनलोड करते हैं और उस पे मैंने पाइथन कोड रन करने की कोशिश की, तो वो बराबर डेटा एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा है उस पीडीएफ से। तो कैसे क्या हो सकता है, कुछ आइडिया है? मैं बताता हूँ आप कैसे डिसाइड करते हैं। सुनाई दे रहा है प्रॉपर्ली? सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हेलो। हाँ हाँ, दे रहा है। हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई हाँ दे हाँ रहा सर, है। सुन लीजिए। ओके, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको अगर डाटा एक्सट्रैक्ट करना है तो आप जेंसपार्क यूज करके डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेना, जो भी आपका डाटा है। उसका क्या है ना, जो डाटा एक्सट्रैक्ट हुआ उसके अंदर उसको क्या करोगे कि आपका ये जो ये है कि क्लाउड में उसको डाल देना। वो आपको बता देगा कि हाँ ये कोड है, एक्सट्रैक्ट करके प्रॉपर्ली डाटा को आप एक्सट्रैक्ट करने के लिए जेंसपार्क यूज करना, कोड के लिए क्लाउड यूज करना, क्या काम हो सर जाएगा। वापस एक बार बोलेंगे सर, एक बार वापस, आवाज क्लियर नहीं आई। आप बिना ब्लूटूथ के अच्छा आ रहा था सर आपका आवाज, अश्विनी जी। ओके ओके, ठीक है। हाँ हाँ। पहले मतलब बीच में पूरा क्लियर था एकदम। हाँ तो हाँ, आ रहा है, बोलिए। हाँ, तो मैं फिर से बता देता हूँ कि मैंने क्या बोला कि आपका कोई डाउट, मतलब जो डाटा एक्सट्रैक्ट करना है तो जेंसपार्क से वो करिए। अगर आपका कोई मतलब कोड करना है तो क्लाउड से करिए। डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया जेंसपार्क से प्रॉपरली, पीडीएफ से डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद क्लाउड में जाके उसको प्रॉपरली जो कोड है, काम जो भी आपका टास्क है जीएसटी के बारे में कि इनवॉइस के बारे में जो भी है, उसको डाटा वो प्रॉपरली यूटिलाइज कर लेगा। लेकिन एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको जेंसफायर यूज करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको क्लाउड, अगर हो सकता है तो ट्रे में हो सकता है, लेकिन मैं पीडीएफ डाटा एक्सट्रैक्ट प्रॉपरली वो करेगा कि नहीं पता नहीं। लेकिन ट्रे वो भी कर सकता है, थोड़ा आपका कोई फोटोज की जो भी हो वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ओके।
दिनेश जी। हाँ जी सर। हाँ, वो ओके। नहीं नहीं, ओके। पहले क्या बोला था वो, उसका नाम थोड़ा स्पेल कर देंगे ना सर? ट्रेड ट्रेड डॉट ए। ट्रे ट्रेड से डॉट नहीं। ए अच्छा, ट्रे डॉट क्लाउड। एआई से एक्सट्रैक्ट करना है क्या? और फिर क्लाउड नहीं, में जाके कोडिंग करवाना है? हाँ हाँ, सुनो, एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हो जेनस्पैक डॉट ए आई। जेनस्पैक लिख दिखा देता हूँ, रुकिए। ये यस सर, यस। जेनस्पैक। ओके। ओके। हम्म। जेनस्पैक के अंदर आप ये प्रॉपरली कहना है कि सुपर एजेंट है आपका। मॉडल अलग होता है और एजेंट अलग होता है। एजेंट क्या करता है कि मॉडल को टास्क असाइन करता है। एजेंट ह्यूमन एज लैंग्वेज को प्रॉपरली क्या ना समझ सकता है कि हाँ ये ह्यूमन लैंग्वेज में ये समझ सकता है। लेकिन मॉडल ह्यूमन लैंग्वेज समझ नहीं सकता, वो प्रॉम्प्ट ही समझ सकता है। ओके, तो आप जेंसपार के अंदर से वो जो भी बता सकते हो वो काम कर, टास्क एक्सट्रैक्ट करना की जो भी हो करना वो कर लेगा। उसके बाद चैट जीपीटी से वो टास्क, वो क्लॉड से हो जो भी हो वो टास्क कर लेगा। समझ गए? ओके, तो अभी हम एंड करें या हाँ, कोई डाउट है? और किसी को डाउट है? सर एक एक लास्ट वाला डाउट कवर कर लो। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। मैंने ये आपने जो टूल बताया ट्रे, वैसे 3-4 टूल यूज अभी पूरा नहीं कर पाया, बट अगर आपने यूज किया है, जैसे VS कोड में भी ये फैसिलिटी है, ट्रे में भी ये फैसिलिटी है, देन हाँ कर्सर में भी ये फैसिलिटी है, तो हाँ आपको कौन सा वाला अच्छा लग रहा है? मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ। हाँ, तो मैं बोलूंगा कि ट्रे ज्यादा अच्छा है। क्योंकि मैं ट्रे को प्रेफर कर रहा हूँ कि कर्सर में क्या करता है कि वो जो प्रॉम्प्ट हम देते हैं वो थोड़ा डिले लेता है, कि वो समझ नहीं पाता। ट्रे एआई प्रॉपरली वो समझ सकता है। और कुछ दिन के बाद मैं, अगर मैं एक इनसाइट की बात बताऊं तो जो कीरो नाम का एक एआई है वो भी आएगा अमेजन की तरह। वो अभी डेवलपमेंट साइट में है, अमेजन की कंपनी की तरह से। हमारा टीम में काम कर रहे हैं। तो कीरो भी जल्दी आ जाएगा। तो कीरो अगर आप यूज करेंगे तो वो भी ट्रे से ज्यादा बेटर है। ओके, लेकिन अभी तो ट्रे ही बेस्ट अभी चल रहा है कि वो क्या ना थोड़ा फ्री में है और ज्यादा टास्क जल्दी करता है और प्रॉम्प्टिंग में ज्यादा ही अच्छा काम करता है। तो वो ट्रे आई अच्छा काम करेगा। अगर आप VS कोड कर रहे हो तो VS कोड में क्या है ना, वो जो एक्सटेंशन यूज करते हो वो थोड़ा इतना ज्यादा समझ नहीं पाता। को पायलट यूज करता है तो को पायलट इतना ज्यादा समझ नहीं पाता प्रॉम्प्ट को। तो ट्रे आई आपको बेटर होगा और कीरो बेटर होगा। कीरो आएगा, अभी आया नहीं है। कीरो अभी डेवलपमेंट साइड में है। वो जब हो ये जाएगा। सर मैंने शेयर किया किलो डॉट ए आई है, या उसमें मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, किलो कोड डॉट ए आई है और ये किलो डॉट ए कीरो आई? कीरो कीरो KIRO, KIRO कीरो। कीरो। ओके। हाँ कीरो। मैं भी दिखा देता हूँ, रुकिए मैं भी दिखा देता हूँ। हाँ, एक बार देखा दीजिए ना तो। कीरो कीरो डॉट डॉट डेव। डेव करके है। हाँ, ओके। ये अभी क्या है ना, हाँ, अभी ये क्या है ना कि डेवलपमेंट साइड में है। तो अगर आपको ज्वाइन वॉच लिस्ट करना है तो इसके अंदर वेट लिस्ट में आप ईमेल आईडी दे देना कुछ। मे भी अगर आएगा तो बता देंगे। मैं आने से पहले मैं बता दूंगा कि हाँ कीरो आ गया है कितना। अभी हम उसके टीम में ही हैं, अभी काम चल रहा है। अभी हो जाएगा तो हम पब्लिश करेंगे। एस्टिमेट अब अगर सितंबर चल रहा है, सितंबर लास्ट वीक के अंदर, सितंबर लास्ट को हम इसको ट्राई कर रहे हैं कि इसको पब्लिश कर दे। ये अमेजन की तरफ से है। ओके, और So ट्रे you आई, are trying to say that Kiro dot dev is your product? या नहीं, मेरा प्रोडक्ट नहीं है, मैं इसके अंदर काम कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ मतलब ये काइंड ऑफ वाइब कोडिंग है, जैसे हाँ ट्रे हाँ है। हाँ हाँ हाँ। और ये राइट। ट्रे आई अभी के लिए, ये ट्रे आई अच्छा चल रहा है तो इसको आप यूज कर सकते ओके। हैं। या Okay. Any more doubts before we wind up? नहीं? ओके। सो थैंक यू सो मच अश्विनी जी, थैंक यू सो मच। एकदम बेसिक से आपने शुरू किया तो क्या होता है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाता है। वाइब कोडिंग में बहुत सारी हाँ प्रॉब्लम है। एक्चुअली हाँ। वी ऑल आर डूइंग वाइब कोडिंग, बट क्या होता है, या बहुत सारी प्रॉब्लम है, रिपीटेशंस करना पड़ता है। समटाइम्स इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग दोज हु आर या ट्राइंग। मैं भी ट्राई करता रहता हूँ ऑब्वियसली। तो बहुत क्या होता है, कभी कभी गुस्सा उठता है, कभी इस टाइप का चीजें। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ये सेशन रखा था। तो मेन जो हमारे लाइब्रेरीज एटलीस्ट पांडास नंपाई उनका बारे में हम लोग को बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिला, हाउ वी कैन सी दैट फाइल्स आर बीइंग लोडेड प्रॉपरली,
करंट डायरेक्टरी में चेंज करके और एंड हाउ वी गेट द आउटपुट एंड एवरीथिंग. So thank you so much, Ashwini ji. Thank you so much, and those who have joined, thank you once again for participating and making this a very interactive sessions. A lot of doubts were also solved. Okay, recordings आपको next week तक मिल जाएंगी. And बाकी हम लोग ग्रुप्स में Ashwini ji is there. We will share the link to connect with the speaker. Those who want to connect further, they can connect. Okay, wind up करते हैं. अगर आपका कोई भी डाउट है मेरे को पास कर सकते हो, मेरा हाँ. लिंक्डइन आईडी में भी दे दूंगा, लिंक्डइन आईडी में या फिर ग्रुप में भी. जो भी हाइप कोडिंग के अंदर, कि यहाँ पे कोई लाइब्रेरीज के अंदर कुछ भी डाउट है, मैं 24 आवर्स मैं आपको अवेलेबल रहूंगा. आप जब भी आप बोलोगे मैं आपको डाउट सॉल्व कर दूंगा, कुछ नहीं है, मैं बता हाँ, दूंगा. अश्विनी जी इज देयर इन द ग्रुप. ज्वाइन किए हैं उन्होंने, ग्रुप 2 में है वो. ठीक है. थैंक यू एवरीवन फॉर बिजी शेड्यूल में भी आपने सबने ज्वाइन किया एंड मेड दिस अ सक्सेसफुल सेशन. थैंक यू सो मच. थैंक यू अश्विनी जी. थैंक यू. वेलकम, इट्स माय Okay. प्लेजर. थैंक यू एवरीवन. बाय बाय.